Good morning, students. In our last class, we have read about a few question answers of your chapter number 1. Today, we are going to read about the further exercises of that particular chapter, which is exercise number 4. We need to answer these questions in 100 to 150 words. The first is, what are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? The mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story are totally different from the present day teachers and the school rooms. समझ गए स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन ये था कि अभी के जो टीचर्स हैं या मार्जी के जो टीचर्स थे उनमें किस प्रकार की डिफरेंस था। तो डिफरेंस काफ़ी था, बिल्कुल अलग थे। मार्जी वाले टीचर्स मैकेनिकल थे और अभी वाले अलग थे या अलग हैं। Margie and Tommy have robotic and mechanical teachers with computer screens. The lessons are shown to the students on the screen of the mechanical teachers. Then tests are taken by them. The mechanical teacher takes almost no time in calculating the marks obtained by the students in tests. They can be adjusted as per the level of the students. The mechanical teachers are very regular in their study, in their duty rather. They start flashing every day at a certain time except on Saturday and Sunday. Or you can also write they start flashing every day. They start flashing on weekdays at a certain time. The mechanical teacher never goes against its teaching schedule, whether it is giving homework or taking tests of the students. It teaches students as per the program and pace set in it for the students. The students need not to go anywhere for education as their school rooms are set in their own homes. तो स्टूडेंट्स आगे के दिनों में ये होने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है कि फ्यूचर में बिल्कुल ये होगा कि हमारे घरों में ही हमारे टीचर फिक्स कर दिए जाएंगे और हम अपने अपने रूम में बंद होकर के कंप्यूटर के द्वारा सीखेंगे। और आपको पता ही है कंप्यूटर किस तरह से हमें सिखाता है, सब कुछ उसमें सेट करना पड़ता है, प्रीसेट प्रोग्राम होते हैं और प्रीसेट प्रोग्राम के द्वारा ही वो सब कुछ अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार की संभावना फ्यूचर में है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? So students, answer है Margie is an 11-year-old student. Like many other students, she did not like schools. But her hatred towards her school was largely due to its boring teaching method and lonely schooling. Her mechanical school was set next to her bedroom. She had no classmates, she had no fun at her school. Her mechanical teacher was giving her test after test in geography and her performance was getting bad to worse. The teacher was not trying to understand her problem in learning lessons of geography. She hated her school due to its robotic and emotionless teaching method. Margie had a positive opinion about the old schools. She thought that the old schools must have been fun, as all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. Sitting together at the end of the day, the old schools had human teachers who had emotions and consideration for the students. They would understand the problems of the students and help the students solve them with their experience and guidance. So you may write this answer in your notebook. The third question is, do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer.
very interesting question it is that आपके जो स्कूल हैं मार्जी के, क्या आप इस बात से सहमत हो कि मार्जी की जो स्कूलें थी और आज के स्कूलों मीन्स आज के स्कूलों से मार्जी बहुत ज़्यादा खुश होती फ्यूचर के स्कूल के बदले? तो अपने रीजंस दो। तो देखो स्टूडेंट्स, द आंसर विच आई एम शेयरिंग इज फ्रॉम ए पर्टिकुलर बुक एंड you may write your own answers, but in case you will write your own answers, then you need to tell me about it and I will just check it thoroughly. Else you can also write my answers, there is no issue with it. So the answer is, I totally agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story. In the story, Margie had a very advanced and mechanical school and her classroom was next to her bedroom. She had a mechanical teacher who taught her in a very boring and emotionless style. She had no fun in her school as she had no classmates. Her school was limited to only study, while school creates a picture of study in class, fun with classmates, running, playing, shouts of joy of kids in the school playground. But Margie's school was totally devoid of fun and joy. Her mechanical teacher gave her test after test and did not even try to understand her problem in the lesson. तो देखो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल टीचर के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है। मैकेनिकल टीचर जो है यानी कंप्यूटर्स जो हैं वो तो फिक्स्ड हैं, उनके प्रोग्राम फिक्स्ड हैं या सेट किए हुए हैं, उनके अंदर कहीं से कोई इमोशन हो ही नहीं सकता, वो तो मशीन है। और बिना इमोशन के ही वो पढ़ाते हैं अपने प्री प्रोग्राम्ड जो प्री सेट प्रोग्राम्स हैं उनके द्वारा वो पढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वो बहुत ही कम बच्चों को ही पसंद आ सकते हैं, जो खुद ही बहुत ज़्यादा अनसोशल किस्म के बच्चे होते हैं या ज़्यादा सोशलाइजेशन पसंद नहीं करते। उन कुछ गिने चुने बच्चों को भले ही पसंद आ जाए, अदरवाइज मैकेनिकल टीचर जो हैं वो एक आम बच्चों को पसंद आना बड़ा मुश्किल है। Margie believed the old kind of schools had more fun than her school in the story. They had human teachers who could understand the problems of their students better. They could teach them with patience and understanding. This was not possible with Margie's mechanical teacher. Thus the schools today are more fun than the schools in the story. तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मार्जी को बुक पढ़ के, स्कूल के बारे में बुक पढ़ के जब ये पता चला कि उसके दादाजी के दादाजी किस प्रकार के स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ रोज़ क्लास करने जाना पड़ता था, इस प्रकार की चीज़ें पढ़ करके मार्जी को ये समझ में आया, वो यही समझ में आया कि भाई उन स्कूलों में जो मज़ा था बच्चों के बीच, टीचर्स के बीच, क्लासरूम के अंदर, वो कंप्यूटर से सीखने में बिल्कुल भी नहीं है। एंड देयर इज अ राइटिंग पोर्शन स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज माय होमवर्क टू यू, प्लीज डोंट copy it from any guide, you need to do this by yourself. I should not get the same answers from the guide in your textbook. होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ ये आपको खुद से ट्राई करना है और गाइड की सहायता नहीं लेनी है। क्वेश्चन क्या है? ए न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ आइजैक एसिमोव्स शॉर्ट स्टोरीज हैज जस्ट बीन रिलीज्ड. Order one set, write letter to the publisher, Mindframe Private Limited, 1632 Asaf Ali Road, New Delhi, requesting that a set be sent to you by Value Payable Post (VPP), and giving your address. Your letter will have the following parts: addresses of the sender and the receiver, the salutation, the body of the letter, the closing phrases and सिग्नेचर. तो क्वेश्चन आप समझ ही गए कि एक नई किताब आई है आइजैक एसिमोव की शॉर्ट स्टोरीज की, जिसे माइंड फ्रेम प्राइवेट
लिमिटेड नाम के पब्लिशर ने पब्लिश किया है। आपको माइंड फ्रेम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एड्रेस भी दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस को आपको लेटर लिखना है, उसे रिक्वेस्ट करना है कि वो आइजैक एसिमोव की शॉर्ट स्टोरी आपको वीपीपी से जल्द सेंड करे। अपना एड्रेस देना है और सारी बातें बतानी है। तो दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स ए new chapter of your supplementary reader, that is the adventures of Toto। ये चैप्टर हम शुरू करते हैं, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। देखते हैं इस चैप्टर में जो है द स्टार्टिंग पोर्शन इज हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Adventures of Toto स्टोरी जो है वो एक बंदर के बारे में है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आपके पास कभी भी कोई पालतू बंदर रहा है। ऑब्वियसली हम लोगों के पास तो पालतू बंदर तो हम लोग नहीं रखते। टोटो एक बेबी मंकी है, मीन्स बंदर का बच्चा है। और देखते हैं इस स्टोरी में पढ़ के कि ये जो टोटो है ये बदमाशियां करता है या शांत रहने वाला मंकी है। कैसा ये है ये देखते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ, and the monkey looked so out of place that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So students, दादाजी ने एक टोंगा ड्राइवर यानी तांगे चलाने वाले से 5 रुपए में, ये कहानी बरसों पहले की है तो इसलिए उस ज़माने में 5 रुपये भी बहुत हुआ करते थे। तो दादाजी ने एक तांगे चलाने वाले से 5 रुपये में टोटो नाम का एक हाथी का रादर बंदर का बच्चा खरीदा, टोटो। और टोंगा ड्राइवर जो था, वो तांगा चलाने वाला जो था, वो उस लाल रंग के बंदर के बच्चे को एक फीडिंग ट्रफ का मतलब, ट्रफ का मतलब कंटेनर, फीडिंग मतलब खाने पीने की चीज़ों से संबंधित। तो फीडिंग ट्रफ में वो टोंगा ड्राइवर जो था वो फीडिंग ट्रफ यानी खाना देने के कंटेनर के साथ साथ लाल रंग के बंदर टोटो को बांधे रखता था। तो दादाजी को उस बंदर को देख करके थोड़ी दया सी आई और उन्होंने फिलहाल 5 रुपए दे करके उस बंदर को खरीद लिया, ये सोच करके कि इस बंदर को वो जू में भी दे सकते हैं। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. तो समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स, टोटो एक खूबसूरत दिखने वाला बंदर था। उसकी चमकदार आंखें थी और उसकी जो भौहें हैं, आंखों के ऊपर जो एक लाइन होती है बालों की, उन्हें आईब्रोज कहते हैं, आप जानते ही हो। तो उसकी आंखें जो है वो सेट की हुई आईब्रोज के नीचे इस प्रकार से चमचमाती थी जैसे लगता था कि ये नटखटपन से भरी हो। उसके दांत खूबसूरत थे, सफ़ेद दांत थे
जिन्हें देख करके अक्सर कई औरतें डर जाया करती थी। लेकिन उसके हाथ जो थे वो थोड़े सूखे लगते थे, शायद धूप में काफ़ी समय रहने के कारण ऐसा हुआ हो। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. तो उसके जो हाथ थे वो थोड़े से गंदे थे, सूखे हुए थे रादर, लेकिन उसकी जो हाथों की उंगलियां थी वो बहुत फास्ट चलने वाली थी, और हाथों की उंगलियों में भी एक एक प्रकार की शरारत थी, एक प्रकार का धूर्तपन था। उसकी जो पूंछ थी वो बेहद खूबसूरत लगती थी। दादाजी को हमेशा से ही दादाजी का हमेशा से ये मानना था कि जानवरों की पूंछ ही उनकी खूबसूरती होती है। इसकी पूंछ भी बहुत खूबसूरत थी, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी, और एक तरह से उसके तीसरा हाथ की तरह काम करती थी उसकी पूंछ। अपनी पूंछ से वो बंदर का बच्चा न जाने कितने काम कर लिया करता था। ऐसा कोई भी खाना जो उसकी पहुंच से दूर है, वो अपनी पूंछ के सहारे उसको अपनी तरफ खींच लिया करता था। या किसी पेड़ की टहनी में टहलना, लटकना, उसके लिए अपनी पूंछ की बदौलत बड़ा आसान था। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, दादाजी जब टोटो को अपने घर लाए तो कई बार ऐसा होता है घर की औरतों को कई चीज़ों से चिढ़ हो जाती है, या अमूमन चिढ़ रहती है। तो घर के जो जेंट्स होते हैं वो औरतों के शौक़ या औरतों के जो यू नो थॉट है थॉट्स हैं, या उनकी पसंद नापसंद को थोड़ा सा ध्यान में रख के काम किया करते हैं। आमतौर पर जेंट्स ऐसा करते हैं। तो यहाँ ऐसा ही हुआ। दादी इस बारे में बहुत गुस्सा करेगी कि एक बंदर का बच्चा लाया हुआ है, ये दादाजी को पता था। क्योंकि दादाजी जब पहले कुछ नई किस्म की चिड़िया या नया किस्म का कोई जानवर लाए थे, तो दादी ने काफ़ी गुस्सा किया था। इसलिए इस बार ये फैसला किया गया कि टोटो को जो लाया जा रहा है, ये दादी की पहुंच से दूर रखा जाएगा। दादी को फ़िलहाल बताया नहीं जाएगा कि टोटो आया है या हमने एक बंदर का बच्चा खरीदा है। ये तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक दादी का मूड अच्छा ना हो। किसी समय जब उनका मूड अच्छा पाया गया, तब उन्हें ये जानकारी दे दी जाएगी। दादाजी और इस कहानी के जो लेखक हैं, वो दोनों लेखक ऑब्वियसली अपने बचपन की बात बोल रहे हैं, तो जब वो छोटे थे तब की बात है। दादाजी और लेखक दोनों मिल करके बेडरूम वॉल से सटा हुआ एक दूसरा कोई रूम है, वहाँ उस बंदर के बच्चे को ला करके रखते हैं और उसको बांध देते हैं, सिक्योरली बांध देते हैं। सिक्योरली मतलब वो भाग ना सके। एक जगह खूंटे से दीवार से बांध देते हैं उसको। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance. "He is clever," said grandfather. "Given time,
I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. तो देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि बंदर के बच्चे को खूंटे से बांध दिया गया एक दीवार के पास। लेकिन कुछ घंटों बाद जब दादाजी और राइटर वहाँ पहुँचे टोटो को वहाँ से आज़ाद करने के लिए, क्योंकि वो टेम्पररीली उसको वहाँ बांधे थे और कहीं और शिफ्ट करने का विचार था, तो जब उसको लेने के लिए वहाँ वो गए तो उन्होंने देखा कि वो दीवार जो किसी प्रकार के बनावटी खूबसूरत पेपर से ढकी हुई थी। कई लोगों को ऐसा शौक होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कई लोगों को ऐसा शौक होता है कि वो वॉल को डेकोरेट करते हैं। मैं जानता हूं ऐसे किसी टीचर को जो आज से कुछ साल पहले जब मैं किसी दूसरी स्कूल में अध्यापक था, तब वहाँ पर मैंने एक ऐसे लेडी टीचर को देखा था जो जिनमें बहुत ही कमाल की क्रिएटिविटी थी। उनके घर में जब भी हम लोग विज़िट करते थे तो हमने देखा कि वो अपने घर के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को, माने दीवार तो मान लो कई जगह दीवारें हैं, लेकिन कोई एक जगह उन्होंने, एक स्थान पर उन्होंने दीवारों को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया था। गजब उन्होंने पेपर्स लगाए थे, बहुत खूबसूरत पेपर्स मार्केट से वो ख़रीद के लाई थी और बहुत ही कायदे से उन्होंने वो पेपर्स लगाए थे दीवारों पे और बहुत खूबसूरती से उन्होंने उस दीवार को सजाया था। हालांकि उसको उस प्रकार से सजाने का कोई विशेष कारण नहीं था, ये उनका शौक था और बहुत सलीके से दीवार को सजाया गया था। तो दीवार को सजाना भी एक प्रकार का शौक है और ये एक प्रकार की कला भी है। तो दादाजी को शायद दीवार सजाने का शौक था और दादाजी ने रंग बिरंगे पेपर्स, खूबसूरत पेपर्स ला करके, डिज़ाइनर पेपर्स ला करके दीवार को कभी सजाया था या ढका था पेपर से। लेकिन जब वो लोग आए, दादाजी और राइटर जब आए, तो उन्होंने देखा कि पेपर जो है वो सब फाड़ दिया गया है टोटो के द्वारा और बिल्कुल ब्रिक और प्लास्टर ही नज़र आ रहा है, मतलब दीवार नज़र आ रही है और पेपर हट चुका है। खूबसूरत लगने वाला वो पेपर हट चुका है और जिस खूंटी से उसे बांधा गया था वहाँ पर उस खूंटी को भी उसने काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया था और सबसे बड़ी बात, मैंने उसको जो है काफ़ी सारे उसकी धागे या रेशे, खूंटी के जो मतलब जो रस्सी से बांधा गया था उस रस्सी के कई सारे रेशे वगैरह उसने तोड़ दिए थे और वहीं पर राइटर का स्कूल का ब्लेज़र यानी स्कूल का कोट टंगा पड़ा था, उसको भी उसने श्रेड्स यानी कि उसको भी उसने फाड़ दिया। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से। मैं तो ये सोचने लगा, राइटर कह रहा है कि मैं सोचने लगा कि दादी क्या बोलेगी अगर उसको पता चला तो, लेकिन दादाजी ने कोई भी चिंता जाहिर नहीं की, बल्कि वो खुश हो गए टोटो की इस प्रकार की हरकत से और बोले कि टोटो बहुत समझदार है, बहुत चालाक है, ऐसा दादाजी ने कहा। दादाजी के शब्द ये थे कि अगर टोटो को समय दिया गया तो टोटो जो है तुम्हारे ब्लेज़र के जो उसने टुकड़े किए हैं उन टुकड़ों से वो एक खूबसूरत रस्सी बना सकता है और रस्सी बना करके वो खिड़की से भाग भी सकता है। तो इस प्रकार के विचार थे। तो इन विचारों से कम इतना तो समझ में आ ही गया कि दादाजी टोटो को बहुत प्यार करने लगे थे, बहुत चाहने लगे थे। होता है ऐसा अक्सर, जब अगर हम लोग कोई पेट एनिमल लाते हैं तो हमें उसके साथ घर के पारिवारिक सदस्यों की तरह ही लगाव हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो कुत्ते पालते हैं या कुछ और जानवर पालते हैं, कई लोग खरगोश भी पालते हैं, कई लोग एक्वेरियम में मछलियाँ पालते हैं। हाँ, तो इस प्रकार की चीज़ें, मैंने कई प्रकार के पेट एनिमल्स लोग रखते हैं। और गायों के तो बारे में आप जानते ही हो, गाय हमारे यहाँ कई घरों में पाई जाती है और गाय बोलो, भैंस बोलो, बकरियाँ बोलो,
ये सारे के सारे पेट एनिमल्स हैं और इनको पालने के बाद आप अगर देखो तो ये जो जानवर हैं, ये जानवर पालने के बाद जो पालने वाला है उसका काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है इनके साथ, और उन जानवरों को अगर कुछ होता है तो काफ़ी दुख भी होता है पालने वालों को। कुछ भी होता है तो पारिवारिक सदस्यों को, जैसे हमारी कोई बीमारी हो गई, कोई कष्ट हो गया, तो हमें जितना कष्ट होता है अंदर से, उस प्रकार का कष्ट हमें जो है पालतू जानवरों के लिए होता है। तो ये हमारे समय बीतने के साथ साथ हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि इस स्टोरी की शुरुआत में हम ये पा रहे हैं कि दादाजी तो अभी जो शुरुआत ही है, दादाजी तो अभी टोटो को घर लाए ही हैं, लेकिन पहले ही दिन से टोटो ने उनका मन जीत लिया और वो पहले ही दिन से उनके प्रति टोटो के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखने लगे। ऐसा इंसानों के द्वारा स्वाभाविक रूप से अक्सर होता है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, और इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डील विद द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग इसके अगला भाग जो है इस चैप्टर का, वो अपनी अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव enjoyed द वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर रादर। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर आगे होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। ओके, और प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको शो किया हूँ वो नोटबुक्स में उतार लेना, और एवरी सैटरडे और वेडनेसडे को सबमिट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।